ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ 2। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ 1 ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਰੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਫਰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਥ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੈਲਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਅਬਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਵਰਡਸ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 2,45,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ 7% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਲੱਖ ਹੈਗਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ 37,39,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੇਬੈਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 37,45,000 ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ C1+ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ C ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਲਿਖੋਗੇ। 1+ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸੈਪਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਮੈंने ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਨੂੰ 37 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 35 ਲੱਖ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ 40 ਦਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਟਿਵਿਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲਈ ਸੀਗੀ 35 ਲੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਜਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਦੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਜਨਰੇਟ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਇੰਨਾ % ਗਰੋਥ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ % ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੇਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 10,800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। 10,800 ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 10,800 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 10,000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ 8%। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 8% ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ % ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। अगर 10,800 माइनस 10,000 करेंगे 800 बटे 10,000 आ जाएगा ना। 10,800 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10,000 परसेंटेज की वैल्यू निकाली उन्होंने 8%। जो हमारे पास आ रहा है 0.08, इसको अगर परसेंटेज में लेके जाते हैं तो 8% बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मेथड है सेम वैसे ही होगा जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में कर रहे थे कि 0 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, 0 से कम है तो रिजेक्ट करेंगे। इसमें इन्होंने बताया कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट में कैपिटल से ज्यादा हम बोलते हैं कि हमारा रिवर्स या फिर रिस्क ज्यादा होता है तो हम मोस्टली प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं पैसे वहां पर लगाने के बेनिफिट सोचते हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो रिस्क तो ज्यादा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लेवल भी उतना ही ज्यादा होता है अगर वो काम करता है।
लो रिस्क होगा तो बंदा पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता ही नहीं है। जहां भी जीरो लेवल होगा वहां पर वो बोलते हैं भी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के ये जो मेथड है इसके बेनिफिट क्या लिखे इन्होंने, एडवांटेज, इसमें टाइम वैल्यू हमेशा देख के चलते हैं। हमने देख लिया कि 10,000 रुपये लगाए, साल बाद 10,800 मिले, तो एक साल में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, टाइम तो साथ में लेके जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, इसमें हमारे प्रोजेक्ट में जितना टाइम लाइफ टाइम में चलेगा प्रॉफिट को ऑलवेज साथ में लेके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रॉफिट को आप इग्नोर करके चलते हो। दूसरा बोला कि एक्सेप्टेड रूल, इसमें एक्सेप्टेड रूल हमेशा रिस्क बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग वैल्यू को लेके चलेंगे, को भी हमारे पास आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू में 0 से ऊपर लेके चलते हैं, इसमें हमेशा वैल्यू मैनेज कर चलते हैं। इतना रिस्क होगा, रिस्क के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। शेयर होल्डर की वैल्यू इसमें सेम इंक्रीज ही होती है जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज हो रही थी। लिमिटेशन में मल्टीपल रेट, प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपके पास मल्टीपल रेट होंगे। सिंगल रेट में तो काम करेंगे तो सिंपल है, अगर डिफरेंट रेट्स होंगे तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे ना करें वो प्रॉब्लम आएंगे। अभी मैं बोलूँ कि मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर में पैसा लगाना है, सिंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो मे भी हम सब लोगों को अच्छा लगेगा कि इसमें पैसा लगाएं बेनिफिट है। जब आपको डिफरेंट टाइप्स में बताया जाएगा तो आपके पास बहुत सारे उलझन होगी कि किसमें ना लगाएं किसमें ना लगाएं, क्योंकि सबके अपने अपने बेनिफिट होंगे, सबके अपने अपने नुकसान भी होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मीन्स आप आपस में बात कर सकते हो। जो एक्चुअल में रियल लाइफ में इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी में एक दूसरा आपके पास टॉपिक थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग PI भी बोलते हैं। ये भी एक टेक्निक है जो मॉडर्न टाइम में यूज की जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, मेजर ऑफ अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। किसी प्रोजेक्ट की जब आप मेजर करते हैं उसमें कितनी अट्रैक्टिवनेस है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में हमें कितना प्रॉफिट होना है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये आपका पेज नंबर शायद आगे होगा, नहीं ठीक है आगे। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में हमें कितना बेनिफिट होना है जब आप उसको चेक करते हो तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही बोलते हैं। अगर इसको निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय द इनिशियल कैश आउटले। आपकी कंपनी में पूरे साल में जो प्रेजेंट वैल्यू में कैश इनफ्लो की रेशियो है उसको डिवाइड कीजिए कैश के आउटले। आपके पास कैश का आउटले हम बोल सकते हैं कि कैश कहाँ कहाँ पे हमारा यूज हो रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो में। जो आपने एक रेशियो बना के रखी इतना पैसा हमारे पास चाहिए वो ले आपके पास क्लियर हो, उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आ जाएगा। इसके भी उन्होंने एडवांटेज बताए हैं, इसमें भी टाइम वैल्यू वही पॉइंट लेके चल रहे हैं, टाइम वैल्यू इसमें भी होगा। हमेशा शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑलवेज इसमें फिक्स होता है, कितने % हम लोग प्रॉफिट कमाते चले जा रहे हैं। लिमिटेशन में इन्होंने लिखा कि कैश फ्लो का सिर्फ एस्टिमेशन होता है, फिक्स कुछ नहीं होता। इतना जो भी आपको कैश फ्लो का आउटले आप रखेंगे एक एस्टिमेट बेस ही होगा, क्योंकि मुझे फिक्स थोड़ी पता भी हर बार मुझे इतना पैसा चाहिए। कई बार ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है, कई बार कम भी। डिस्काउंट रेट एस्टिमेशन, इसमें डिस्काउंट रेट का एस्टिमेशन लगाने बैठे होंगे वो फिक्स नहीं है, आपको डिस्काउंट रेट भी सेटअप खुद करनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास आता है भी कैश फ्लो एस्टिमेशन। कैश फ्लो एस्टिमेशन क्या होगा, दो तरीके से दे सकते हैं, इनफ्लो में भी और आउटफ्लो में भी। इनफ्लो में हमारे पास कितना पैसा आएगा, आउटफ्लो होगा कितना पैसा हमारे पास जाएगा। कैश फ्लो को इन्होंने दो तरीके से और भी दिखाया है, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंटल बेस पे, एक कंपोनेंट बेस पे। इंक्रीमेंटल बेस पे क्या हो सकता है कि जब आपके पास एब्सोल्यूट कैश फ्लो होगा, पक्के तौर पे आपको पता है कि ये पैसा हमारा लगने वाला है, भी हमारा खर्चे जो है बढ़ेंगे, या फिर आप कैश फ्लो एब्सोल्यूट बेस पे इनफ्लो भी हो सकते हैं, भी इतना पैसा हमारे पास ऑलवेज आएगा। रिलेटिव कैश फ्लो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ और काम भी आपको साथ में करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रिलेटिव कैश फ्लो। फिर आते हैं कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो में। कैश फ्लो में सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पक्के तौर पे आपको किसी बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट में करनी पड़ती है। ये कैश फ्लो में ही आता है क्योंकि इतना पैसा आपका लगेगा। एनुअल नेट कैश फ्लो, एनुअल नेट कैश फ्लो होगा कि पूरे साल में आपने कितना पैसा फ्लो में लिया, जितना पैसा आपके पास आया और जितना पैसा गया। कई बार किसी अकाउंट्स में देखेंगे तो कैश बुक बनाते हैं, आने वाला एक तरफ जाने वाला दूसरी तरफ, तो लास्ट में बैलेंस निकालते हैं, तो दोनों चीजों को मेजर करके चलते हैं। वो पूरे साल में लास्ट में जो पैसा बचेगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो हो गया कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई पैसा लगाया उसमें कितना कैश फ्लो आ रहा है, उस सारा फ्लो आप इसमें लेके चलेंगे। उसके बाद आपके पास बता रहे हैं भी कैश फ्लो अगर आप देखने जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही होती है कोई एक्सपेक्टेड लाइफ में, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड लाइफ में जितना आपका इन्वेस्ट कैश फ्लो लगेगा वो सारी चीजें इसमें आएंगी। आपकी रेवेन्यू, आपकी कॉस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी कोई सेल ऑफ एसेट्स या फिर परचेज ऑफ एसेट्स, सारी चीजें कैश फ्लो में ऐड कर ली जाएंगी।
फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ रही हैं कैश फ्लो में। अगर देखेंगे तो संक कोस्ट जो अपने नेचर में फिक्स होती हैं, कंपनी में आपको परमानेंट करनी ही पड़ेगी, कोई ऐसी कोस्ट नहीं होती। संक कोस्ट का 2 नंबर में क्वेश्चन में शायद आप पढ़ ले कि संक कोस्ट क्या है। एक्चुअल में जो कंपनी के खर्चे जो अपने नेचर में फिक्स हैं, जो कंपनी को करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना जैसे हम बोले कि हर साल आपको जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि रेंट है, ये एक तरह की कंपनी की संक कोस्ट है। पूरे साल में जो आपको रेंट पे करना है पर मंथ के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो फिक्स ही रहेगा, कंपनी उसमें चेंजेस नहीं कर सकती है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट कई बार कंपनी में एक अपॉर्चुनिटीज होती है, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा और लगाने से हमें बेनिफिट ज्यादा हो सकते हैं। मान लो 10 लेबर से हम 100 प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, कंपनी को लगता है कि 2 लेबर अगर और ऐड कर दें तो मे बी 20-30 प्रोडक्ट और ऐड हो सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट भी कई बार कंपनी में लग जाती है। एक आते हैं एक्सटर्नलिटीज हम बोल सकते हैं कोस्ट को सेविंग करने के चक्कर में कई बार जैसे हम बेनिफिट लेते हैं तो थोड़ी कोस्ट और ऐड कर लेते हैं। सेम एग्जांपल लेबर की जगह हम रॉ मटेरियल पे ले सकते हैं कि थोड़ी सी कोस्ट ज्यादा, एग्जाम्पल 100 रुपए का सामान है, एक प्रोडक्ट मिलता है, वही प्रोडक्ट हम डबल लेना चाहते हैं तो 160 में 2 मिलते हैं, तो हमारी एक्सटर्नलिटीज होगी, हमें एक्स्ट्रा खर्चा करने में बेनिफिट ज्यादा होगी, हमारी कॉस्ट कम लग रही है, तो ये चीजें उसमें हम ले सकते हैं। फिर आ रहा नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों मेथड जो है हमेशा कंपनी में कैश फ्लो को साथ में लेके चलते हैं। दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो बहुत कम है, सिमिलैरिटी तो सबसे ज्यादा है कि डिस्काउंटेड फ्लो और टाइम फ्लो को साथ में लेके चलते हैं। अगर डिफरेंस देखने बैठते हैं तो दोनों में क्या होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है एब्सोल्यूट मेजर करते हैं, पक्के तौर पे कि हमें पैसे कितने आएंगे, उन चीजों को साथ में लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट में बोला था कि 35 लाख को अगर 7% एफडी के साथ लेके चल रहा है तो 37,45,000 बन रहा है, लेकिन जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये आपकी वैल्यू परसेंटेज में लेके आता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये ले सकते हैं, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मेजर करने वाला है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपकी वैल्यूज को सिर्फ परसेंटेज में बताएगा, भी इतना परसेंटेज आपको बेनिफिट होगा। टोटल आपको वैल्यू हर एक प्रोजेक्ट की बाद में ही जाके पता लगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। दोनों में इन्होंने कन्फ्लिक्ट भी लिखा है, ये लॉन्ग टाइम के लिए दोनों कन्फ्लिक्ट्स हैं। लॉन्ग टाइम में दोनों के आंसर सेम होंगे ये हम लोग कह नहीं सकते, दोनों के आंसर लॉन्ग टाइम में अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी दोनों को चीजों को अलग अलग प्रोजेक्ट में लगाओगे तो मे भी दोनों के आंसर अलग अलग भी आएंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है रिस्क इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से रिस्क होंगे। सबसे पहले जनरल इकोनॉमिक रीजंस या फिर जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। आज के टाइम में जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, मान लीजिए प्राइसेस कंट्रोल में है, फ्यूचर में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन आ रही हैं, बिजनेस में हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ गए तो आपका जो बजटिंग का जो प्रोसेस है मे भी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। आज जो आप पैसे सोच के लगा के सोच रहे हो, कल को कीमतें बढ़ गई या कम होगी तो डिफरेंसेस आंसर्स आएंगे ही आएंगे। दूसरा इंडस्ट्री फैक्टर्स। इंडस्ट्री फैक्टर भी आलस मैटर करता है कि आप इंडस्ट्री में जो काम सोच रहे हैं मे बी जिस लेवल पे आज की आपकी इंडस्ट्री चल रही है, कल को बाई द वे आपको कोई इनोवेशन करनी पड़ी, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ी, तो जो आपने पहले ही सोच के रखा हुआ है कि हमारे पास रिस्क है, ये रिस्क ही होंगे। क्योंकि मान लीजिए आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया 5 लाख से, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, 1 साल की इन्वेस्टमेंट आपने सोच के रखी हुई थी, फ्यूचर में आने वाले टाइम में मे भी लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर कम से कम 10 महीने बाद भी हो जाएंगे। आपका बिजनेस तो अभी 3 महीने के लिए पेंडिंग है, लोगों का टेस्ट होगा तो आपका प्रोजेक्ट तो खत्म होने के कगार पे हो जाएगा, क्योंकि लोग तो दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो आपको अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन भी करनी पड़ सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ सकती है, जो आपके बिजनेस में रिस्क का ही एक तरह का काम करती है। उसके बाद आती है कंपनी फैक्टर। कंपनी फैक्टर का मतलब होगा कि आपके मैनेजमेंट में अगर कोई चेंजेस करने पड़े, जिस मैनेजमेंट के साथ आपने जो डिसीजन लिए थे लगातार वो पर्सन आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये तो फिक्स है ही नहीं। सेम ऐसा गवर्नमेंट लेवल भी होता है, किसी मंत्री को आज आपने मंत्री बना दिया, कल को मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या बंदा कहीं चला गया या फिर उसकी डेथ हो गई, चेंज तो करना पड़ेगा। सेम कंपनी में भी ऐसा ही है, जो मैनेजमेंट में पर्सन होंगे जो आज आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कल को कंपनी लीव कर दें, उस चीज को हैंडल कौन करेगा, प्रॉब्लम जनरेट होंगे। बाई द वे उसकी डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए, उसकी जगह पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन आएगा जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए लगा हम लोग वो मिल सकते हैं जो सोशल कंडीशन भी, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में आ सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी आ जाए, चलता हुआ बिजनेस आपका बंद हो जाए, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए आपके बिजनेस में पैसे की कमी आ जाए, जब आपका बिजनेस बिल्कुल कैश में चल रहा था आपको ऑनलाइन पेमेंट्स में आना पड़े, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में ऑलवेज रहती हैं। फिर है टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस को मीन्स आपको कंपनी में अगर रिस्क को देखना हो, भी हमारे पास रिस्क कौन कितने प्रकार के रिस्क को वैसे अगर देखें 2 प्रकार के ही होते हैं, मैंने कल भी बात की थी, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क होंगे जो गवर्नमेंट ने खुद सेटअप किए होंगे, जिसको हम सॉरी कंपनी में ऐसा मुझे लगता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अनसिस्टमेटिक होते हैं, जिसके बारे में कुछ कंडीशंस पता ही नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया होता, उनको कंपनी को अवॉइड ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर रिस्क को आपने रिस्क को चेक करना है तो एक टेक्निक्स में हमारे पास आ रही है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होती है? एक्चुअल में आपके प्रोडक्शन में जो भी आपको प्रॉफिट चल रहा है, जब आपको क्लियर पता होता है कि इतना पैसा हमने कमाना है, उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकें, इसको बोलते हैं। एक्चुअल में सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ क्लियर आपको चीजें पहले से ही पता है कि ये काम करने का मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा, तो मैं उसमें ही काम करूंगा, उसको बोलते हैं। रिस्क को हमेशा एनालिसिस कर सकते हैं, मैं क्यों पैसे लगाऊंगा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी होगी। एग्जाम्पल इन्होंने ये भी बताया जैसे कि एक इन्वेस्टर्स है, उसका कैश फ्लो उसको लगता है कि जहां पर वो कोई पैसे कहीं पर लगाएगा तो उसको 30,000 रुपये नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इन्वेस्टर मान के चलता है कि 10,000 रुपये मैं आज लगाऊंगा, किसी पर्सन ने उसको बता दिया कि अगर 1 साल बाद तुम पैसे निकालोगे तो 30% हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि कोई बंदा आपको बोल दे म्यूचुअल फंड में है, आज आप पैसा लगाओ, साल बाद आपका पैसा डबल से ऊपर हो जाएगा। ये कोई फिक्स तो नहीं है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी क्या होगी? अगर मुझे कुछ पता होगा कि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है एफडी के ऊपर, या फिर पोस्ट ऑफिस में मैंने जमा करवाना है, या फिर बॉन्ड पत्र लेने हैं, या फिर गोल्ड डिपॉजिट करना है, तो उसमें मुझे स्कीम में पता है कि 10,000 का मेरा 18,000 20,000, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है। एक्स्ट्रा मुझे पता है कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मुझे बेनिफिट है, लेकिन इसमें मुझे तो फिक्स ही नहीं है। हो सकता है कि आपका 10,000 भी डूब जाए अगर मार्केट और भी डाउन चलेगी तो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं। रिस्क को एनालिसिस करने के लिए हमेशा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में चलना चाहिए। एग्जांपल इन्होंने साथ में आपको बताई है कि इसके अलावा हमारे पास एक फैक्टर है कि अगर कहता बंदा 20,000 पे पूरे साल में कमाए, उसको सेफ साइड बताया कि बैंक में जमा करने पे या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो बंदा सेफ साइड में जाएगा। तो रिस्क को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर आपको सर्टेनिटी में सेफ साइड पता है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप लोग एक फ्यूचर में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद दूसरा एक मेथड है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी समझते हो? जैसे क्या बोलते हैं, दांतों में झुंझुनाहट होना, कई बार गर्म ठंडा खा लिया तो सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स आएंगी। सेम कंपनी में भी ऐसी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। जो कहता हम लोग प्रोजेक्ट में मेथड यूज करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर किसी उनमें से किसी एक वेरिएबल में भी चेंजेस कर दिया जाए उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं। आप अपने बिजनेस में लेके चल रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, हम इसकी तरह काम करेंगे कि हमारे बिजनेस में इतना पैसा फिक्स और पे आने वाला है। उसके किसी एक वेरिएबल में, मान लीजिए कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, या फिर आप लोग एब्सोल्यूट कॉस्ट में, या फिर लेबर में, रॉ मटेरियल में, कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उसको चेंज करने से आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं या नुकसान क्या हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्योंकि आप चलती हुई चीज को खराब करने वाले हो तो प्रॉब्लम्स आपकी ऑटो मोड पे आती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आप कंपनी में काम करने जाओगे तो रिजल्ट 3 तरीके से आ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि हर बार एक ही तरीके से रिजल्ट आएगा, 3 तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है पेसिमिस्टिक, एक आ सकता है एक्सपेक्टेड। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास जो भी काम चल रहे हैं, ये पेसिमिस्टिक क्या होगा? जब आपकी एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने सोचा कि ये काम हम करेंगे, लेकिन रिजल्ट हमेशा बैड कंडीशन में आते हैं। मींस आपकी सोच जो बिल्कुल बैड में चली जाती है, रिजल्ट जो आते हैं तो बैड हो जाएंगे। आपने एग्जांपल मान लो कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में सोचा या गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचा, आपने बहुत सारी तैयारी की, एक्चुअल में जब पेपर देने गए तो आपकी तैयारी में से कुछ भी नहीं आया, रिजल्ट क्या होगी? पेसिमिस्टिक वाले ही हो जाते हैं। हम लोग सोच के चलते हैं ना, तैयारी तो मैंने बहुत सारी की होती है, रिजल्ट पेपर देने बैठे तो एक्चुअल में परफॉर्मेंस बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाए। ये हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस होती है। कई बार हम लोग आउट ऑफ सोर्सेज में जब काम करने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर ले, तो फिर आता है पेसिमिस्टिक, जब आपके लिए रिजल्ट जो है फेवरेबल आते हैं। आपने जो कुछ सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही, मान लीजिए आपकी बुक में 14 टॉपिक है, आपने सोचा कि मैंने 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जब 7 ही टॉपिक पढ़ने हैं। फेवरेबल कंडीशन कब होंगी? जब जो आपने 7 पढ़े हैं, 7 में से ही आपका टॉपिक आया। पेसिमिस्टिक कब होंगे? जो 7 टॉपिक आपने पढ़े थे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 7 जो ऑपोजिट वाले टॉपिक में आए हैं, तो आपके रिजल्ट। फिर क्या होती है? लास्ट में एक आंसर होता है एक्सपेक्टेड, जो सिर्फ एक्सपेक्टेशन बेस पे वैसा होता है। जब भी सेंसिटिविटी एनालिसिस देखूंगा, एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो इस बेस पे हमें सारा ही काम जब कंप्लीट करना पड़ता है। रिजल्ट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ये 2 बेस पे है। पेसिमिस्टिक क्लियर हो गया, जब रिजल्ट बैड आएगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा कि आपका फेवरेबल रिजल्ट आएगा। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में आपका काम करेगा।
इस टेक्निक की है जो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, या इसके पीछे एक और किया था हमने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। दोनों टेक्निक जो है सिंपल टेक्निक्स हैं, सिंपल बेस पे इसका कहता है आंसर हम निकाल सकते हैं। कोई भी बंदा चाहे तो इसके ऊपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कोई बंदा अपने एडजस्टमेंट्स कर सकता है। लिमिटेशन में इनको कहता है डिफरेंट पर्सन के ऊपर या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपने अप्लाई करना होगा, तो मे बी आंसर्स अलग अलग होंगे। और प्लस आपस में वेरिएबल के रिलेशनशिप दिखाने होंगे, तो मे बी वेरिएबल में रिलेशनशिप भी आप नहीं दिखा पाएंगे। ये था आपका टॉपिक 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 का खत्म। अगर आपको लगता है कि यहाँ पॉइंट पे पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।